इस संस्था के जो प्रेसिडेंट हैं और एबीसी चर्च के भी जो प्रेसिडेंट हैं पास्टर एंड्रयू फिलिप का, and the principal and dean of the institution, Pastor Sudhagar, और प्रिंसिपल और डीन जो है पास्टर सुधाकरन का, and all dear pastors and co-workers and also the seminaries. Greetings to you in the praise of the Lord and Savior Jesus Christ. और साथ में अध्यापकों का, पासवानों का और सारे विद्यार्थियों का यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत करता हूँ। Thank you very much for the appreciation of the introduction, including Pastor and I Philip. और आपका चेयरपर्सन का भी और एनए फिलिपास से धन्यवाद करते हैं, आपने मुझे यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। I had been to this pulpit many times, और मैं इस पुलपिट में बहुत बार आ चुका हूँ, but it was with the different other programs. लेकिन दूसरे कुछ आयोजन प्रोग्राम के द्वारा था। This is the first time that I just connected with the Bible school and the ministry of Reverend N.I. Philip. और पास्टर एनए फिलिप के बाइबल स्कूल के साथ में पहली बार ऐसा एक अवसर मुझे मिला जुड़ने का। I should say that we are from same factory. हम एक ही फैक्ट्री से हम निकले हैं, Same institution we came out. और सेम एक ही जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ से पढ़ के निकले हैं। I came to the institution in 1977. और 1970 के समय में मैं बाइबल कॉलेज पढ़ के निकला था, And I left the place in 1981. और 1981 में मैं वहाँ से निकला हूँ। I just went to Nagaland or Northeast India. और उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मैं नागालैंड की जगह पे मैं गया, And the pastor was here in Delhi. और उस समय पासवान एनए फिलिप पास्टर यहाँ पे दिल्ली में सेवा कर रहे थे। Maybe after 12 years I came back to Delhi. और 12 साल के बाद दोबारा मैं दिल्ली में आया, Still then I could not meet him and I heard that he was somewhere here. और मैं उनको नहीं मुलाकात कर पाया, लेकिन मैंने सुना कि वो यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। And I joined a Grace Bible College as a staff there. और उसके बाद में ग्रेस बाइबल कॉलेज में मैं स्टाफ करके मैं जुड़ा, And different other Bible schools here in Delhi training and teaching God's Word. और भी बाइबल कॉलेज में मैं जुड़ के वहाँ पर परमेश्वर के वचनों को मैं सिखाने लगा। Altogether I should say last 47 years I have been in the ministry of God including my studies. और मैं बहुत समय तक परमेश्वर के वचन को सिखाने की सेवकाई में मैं लगा हुआ था। I left Kerala in 1977 for the glory of God to work here in North India and Northeast India. और परमेश्वर की सेवा करने के लिए 1970 के दशक में मैं वहाँ से निकल के नॉर्थ इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सेवा के लिए मैं निकला। I had many invitations to go back to Kerala and join with the prominent denominations, but since I came from North India, I wanted to be here till I feel till the end of my life. I don't know what will happen tomorrow. और उसके बावजूद मेरे को बहुत सारी उत्तर भारत से जो मशहूर जो स्थापक है उन लोगों ने मुझे बुलाया था केरला वापस आने के लिए, लेकिन मैंने ये विश्वास किया और मैंने निश्चय लिया कि मैं अपने जीवन के अंत तक, मैं नहीं जानता कल क्या होगा, लेकिन उत्तर भारत में अपनी सेवा करना चाहता हूँ। As I am entering into the age over senior citizen, and the health has some problem, there are health issues, I am praying to God, Lord, give me strength to move on in North India. और मैं अभी बुजुर्ग अवस्था में आ चुका हूँ, मेरे को बीमारियां हैं, लेकिन मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु मुझे सहायता करे कि मैं परमेश्वर की सेवा करता रहूँ। Well, it is even if I go anywhere, at least I will see one of the graduates. Even some of them are taught by me here sitting. और some of the graduates who are taught by me here still in front of me. और बहुत सारे जो ग्रेजुएट्स जो मैंने पढ़ाया है वो मेरे आगे बैठे हुए हैं। That is actually my joy and blessing. और ये मेरा आशीष है। Well, thank you so much, Reverend N.I. Philip, inviting me for this seminar, and the Lord bless. I hope that God is going to bless each one of us. और धन्यवाद करता हूँ पास्टर एनए फिलिप का, आपने मुझे बुलाया है, प्रभु निश्चित तौर से हमें आशीष देगा। Well, it's not that don't expect something from a person. और हम किसी और व्यक्ति से don't expect any blessing from any person. किसी इंसान से आशीष को प्राप्त करने की बात में नहीं सोचना चाहिए। But there is only one person who can bless us. केवल एक ही व्यक्ति है जो हमें आशीष दे सकता है। That is what even in this word says about it. और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन में भी लिखा हुआ है। Yeah, because Hebrews chapter 12, as you read below there, you will understand we have only one person to look. और इब्रानियों की पत्री 12वें अध्याय जब पढ़ते हैं वहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, हमें किसी एक ही व्यक्ति को हमें ताकते
रहना है। So the blessing comes from that person. और आशीष उस व्यक्ति से आता है। Your focus should be on that person. और हमारा जो फोकस है उस व्यक्ति पे होना जरूरी है। We are all media soon. अब केवल एक परमेश्वर के लिए एक मीडियम है बस। If the Lord tarries, maybe the next generation, you may be one of you, maybe or many of you will be the medias to pass us these blessings. और परमेश्वर के आशीषों को दूसरों को पहुंचाने के लिए परमेश्वर के एक स्रोत हम बन सकते हैं। Do you believe that? क्या आप इस बात को विश्वास करते How हैं? many of you believe that God can use you for our country? कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा? Amen. And therefore, let us see this very morning where we are, in which track we are. और आइए आज सुबह के समय देखें कि हम कौन से मार्ग पर खड़े हैं, हम अपने आप को जांचेंगे। Shall we come to the book of Hebrews as our text here? Hebrews chapter 12, already verse 1 we have read it. I just want you to read it, verses 1 to 3. और इब्रानी की पत्री 12वें अध्याय का पहला पद हमने पहले पढ़ा था, लेकिन एक बार और हम पढ़ेंगे। इब्रानी की पत्री 12 अध्याय 1 से लेके 3 तक। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे खड़ा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश न होकर साहस ना छोड़ दो। Amen. Let's praise God for these words, everybody. इस वचनों को हमने पढ़ा, उसके लिए परमेश्वर धन्यवाद करेंगे। So I need your prayer as you sit and listen to the word of the Lord. आप बड़े प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्रार्थना करते रहिएगा। It is only a study and I'm going to preach here. ये एक शिक्षा का एक रीति है, आपको सिखाया जाएगा ना कि प्रचार होगा। So your attention is very important. इसलिए आपका ध्यान बहुत ही महत्वपूर्णता है। I'll tell you an example. A teacher who was teaching one of the Puranas in a class, and some of the pastors know that that examples. और पासवानों को ये उदाहरण पता होगा, एक बार एक टीचर क्लास में पुराना को सिखा रहे थे। And you know, many century ago, one teacher was teaching in the class school about Rama and Sita. और एक अध्यापक बहुत सालों पहले राम और सीता के बारे में क्लास में सिखा रहे थे। You may be thinking, why sir is bringing here Rama and Sita? Don't worry, I'm not just taking an example only. और आप इसमें सोच सकते हैं कि यहाँ पे राम और सीता के बारे में क्यों बोल रहे हैं, लेकिन एक उदाहरण आपको बताना चाहते हैं इसलिए बोल रहे हैं। And the teacher explained very nicely all about the relationship. और उनके जो रिश्तों के बारे में अच्छे से बता रहे थे। Toward the end, he asked a question to one of the students. और आखिरी में एक बच्चे से इस प्रकार से सवाल पूछा, What is the relation between Rama and Sita? और राम और सीता के बीच का रिश्ता क्या था उसके बारे में It was बताइए। very simple answer it was supposed to be. और बहुत ही एक सिंपल सा एक आंसर होना था उस सवाल का। And he asked one of the students only, maybe one, he pointed at the person. और एक बच्चे से पूछा कि इसका जवाब क्या है। So he got up immediately, very joyfully answered, Sir, everything is inside except tail, or except tail, everything is inside. Except tail, everything is inside. और पूछ के अलावा सब कुछ अंदर है, पूछ के अलावा सब कुछ बाहर कुछ भी नहीं है। Yes. You know what is that? Did you understand? क्या आप जाने इसका अर्थ क्या है? When the teacher was teaching and explaining all about, when the teacher was teaching and explaining all about the lessons, और जब अध्यापक हर एक बातों को बता रहा था और उनको सिखा रहा था, the student was looking a snake and going to the hole and entering all the tail outside the backy, the rest is inside. और वो इस प्रकार से देख रहा था, पास में एक बिल में एक जो सांप है वो घुस रहा था, केवल उसका जो पूंछ है वो बाहर पड़ा हुआ था। That should not happen here this लेकिन evening. और इस सेशन में किसी में भी आपका ऐसा नहीं होना, आपका ध्यान कहीं और नहीं जाना है। We need your attention. That attention is for your good. और वो जो अटेंशन आपको यहाँ पे देना वो आपकी भलाई के लिए है। When you don't give attention, I will stop it. जब आप यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर
के दास यहाँ पे समाप्त करेंगे। Because last 44 years of teaching, I can understand who listens and who doesn't listen. और पिछले 40 साल से परमेश्वर के दास सिखा रहे हैं, वो जानते कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। Sometimes when I teach, my teaching will reflect back to my chest. और कुछ बार ऐसे होता है जब सिखाते हैं तो जो सिखा रहे हैं वो बात वापस आ जाता है। Then I understand you, not the audience don't receive me. और समझ आता है कि जो सुनने वाले हैं उसको स्वीकार नहीं रहे हैं। So please listen few Hallelujah. minutes. इसलिए बड़े ध्यानपूर्वक हम बैठेंगे यहाँ पे सुनने के Let's लिए। come back to the word which we read. और जिस वचन को हमने पढ़ा है उसका हम ध्यान को लेके आएंगे। And we have here the theme is written. और यहाँ पे विषय को लिखा हुआ है, Finish the race. दौड़ को पूरा करो। Finish the race means we are in the race. इसका मतलब ये है कि हम दौड़ में हैं। We have already started. हमने दौड़ को शुरू कर दिया है Then we have to finish it. और उसको हमें समाप्त करना है। That I will talk to you or will teach you at the end. और उसके बारे में आखिरी में मैं बताऊंगा आपको। But before that, we have to learn few things about. लेकिन उससे पहले कुछ बातों को हमें सीखना है। The writer of the Hebrew talks about these. I don't know what you believe, and I believe personally that it was written by Paul the Apostle. और हम नहीं जानते लेकिन परमेश्वर की इस बात को मानते हैं कि ये जो किताब है प्रेरित पौलुस की ओर से लिखा हुआ है। And he writes in many epistles about a running man or a believer as a runner or athlete. और बहुत सारे उनकी पत्रियों में इस प्रकार से हम देखते हैं कि दौड़ने वाला विश्वास एक दौड़ने वाला एक व्यक्ति के समान बताया गया है। You know why he wrote here in chapter 12? क्या आप जानते हैं इस बात को उसने क्यों इस प्रकार से लिखा है 12वें अध्याय When you में? study book of Hebrews from chapters 1 to 10, जब हम पहले अध्याय से लेके 10वें अध्याय तक इब्रानी की पत्री को पढ़ते हैं that's fully doctrine. और वो सारा जो है धर्मशास्त्र के बारे में है। Jesus is greater than everything, यीशु मसीह बाकी सबसे बढ़कर है, greater than angels, स्वर्गदूतों से बढ़कर है superior to prophets, और जो भविष्यवक्ता है उनसे बढ़कर है, superior to Moses, मूसा से बढ़कर है, Joshua, जोशुआ से बढ़कर है, superior to sacrifices, और जो बलिदानों से बढ़कर है, superior to priest, और जो भविष्यवक्ता जो व्यक्ति याजक है and उनसे बढ़कर है। bringing finally says that the Calvary is greater, the sacrifice is greater than anything for our life. और उसके बाद बताते हैं जो काल्वरी क्रूस का जो बलिदान है वो हमारे जीवन में बहुत ही बढ़कर है करके बताया गया है। So up to chapter 10, it is exactly doctrine. और 10वें अध्याय तक हम देखते हैं कि सारा धर्मशास्त्र की बातें बताया गया है। 11, 12, 13 practical. और 11, 12, 13 पद जो अध्याय है वो हमारे व्यक्तिगत जीवन में कैसे लागू करना है उसके बारे में बताया है। 11 he talks about the faith. और 11वें अध्याय में विश्वास के बारे में बताया है। And 12 says that we have to, if we want to continue the faith of the track, and you should have a focus in your life. और इस 12वें अध्याय में इस प्रकार से लिखा अगर हमें जो यात्रा में दौड़ रहे हैं अगर हमको फोकस चाहिए तो हमें अपने लक्ष्य को सीधा करना जरूरी है। And chapter 13 talks about the ethics that we should have toward God, toward oneself, and toward others. और 13वें अध्याय में हमारे एथिक्स के बारे में बताया गया हुआ है किस प्रकार से हमें जो एथिक्स का हिंदी किसको नैतिकता के बारे में हमारे परमेश्वर से लेके हमारे बारे और दूसरों के बारे में कैसे नैतिकता होना है उसके बारे में बताया है। And I would like to tell you when the writer writes in Hebrews 12 about that finishing, or rather, you have to finish your race. That means there was something weakness to that church. और जब इब्रानी की पत्री में जब इस प्रकार से लिखा हुआ है कि अपने दौड़ को पूरा करना है उस कलीसिया में कुछ बातें था जिसके कारण से वो दौड़ को पूरा नहीं कर रहे थे। The book of Hebrews was written before AD 70, before the destruction of Jerusalem temple. और AD 70 से पहले जब यरूशलेम का मंदिर टूट गया तो उससे पहले ये पत्री को लिखा गया है। This book was a shock to the Hebrew Christians who followed the same traditions of Jews, though they were saved and in the church. और ये पत्री जो है जो पढ़ने वाले जो विश्वासी लोग थे जो यहूदी मत से आए हुए थे उनके लिए एक चौंकाने वाली बात था। So this book gave a shock to them. और उनको ये चौंकाने वाला बात था। That means they were considering the temple is greater than anything. और क्योंकि वो इस बात को मानते थे कि जो मंदिर है वो सबसे बढ़कर है। Hello, are you all here? आप सब यहाँ पे हैं। Okay. And since we don't have any board or nothing, whatever you want to note down, you can note down. I don't know whether you are
If I am going at more speed, sometime you can just pull me back, no problem. और आप लोग के पास में एक किताब दिया गया है, लिखने के लिए नोटबुक है, आप उसमें लिख सकते हैं। अगर पास्टर बहुत जल्दी जा रहे हैं तो आप बोल सकते हैं, पासवान उसको रोक रोक के बताएंगे। So the Jewish people, Jewish Christians consider, though they were saved, still they consider the temple is greater than anything. और जो यहूदी विश्वास में से जो आए हुए थे वो बचाए तो गए थे, लेकिन उसके बावजूद इस बात को मानते थे कि जो मंदिर है वो सबसे बढ़कर है। And the writer writes and make a shock to them that what he considers greater is going to be destroyed. So something greater is here. That's what he talks about the church or the temple of God. और वो इस बात को बताते हैं जिसको आप बड़ा करके सोचते हो वो टूट जाएगा, और जो उससे बढ़कर है, जो परमेश्वर का कलीसिया है, जो मसीह का मंदिर है, उसके बारे में बताया गया। So that means they haven't grown. They haven't grown. और वो बड़े नहीं थे। They were born as a child, children. वो They बच्चे were born as children. जो बच्चे जवान वो जन्मे तो थे, In the cradle. और वो जो बच्चे का जो क्रैडल होता है वो बच्चे डालते हैं। After 30-40 years, still continuing in the cradle life. और उसके बावजूद भी बच्चे का जो अवस्था होता है, जो बच्चे को डालते हैं, उसमें ही उसी बचपना में उनमें थे। I told you that before 70 means AD 30, you can see that the church was established. और इस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि एडी जो 70 से पहले कलीसिया स्थापित हुई थी। Almost 38 to 40 years, the church had the growth. और 30-40 साल तक कलीसिया का बढ़ोतरी के बारे में हम देखते हैं। But he writes them very slowly. You can just check chapter 5 verse 12. Will you please read chapter 5 verse 12 in Hebrews? और इब्रानियों की पत्री 5वें अध्याय उसका 12 पद को पढ़ेंगे। समय के विचार से हाँ। तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। समय के विचार से वो तो अब अभी गुरु है ना। By this time you are ought to be teachers, not that. तो भी यह आवश्यक हो गया है हाँ। कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। हाँ। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। Yes, if you read down there, he says that I have to feed you with the milk or bottle feeding. My languages. और परमेश्वर दास की भाषा में बोले तो उनको अभी भी दूध पिलाना पड़ता है बॉटल से। But you are in a track. लेकिन आप एक ट्रैक में That's हो, what I mean. You are a runner now, आप एक दौड़ में हो, but your running is not progressing. लेकिन आपका दौड़ में आप बढ़ के नहीं आ रहे हो। You are ought to be teachers. आप अभी तक एक अध्यापक होने का समय था। Sorry to say that still I have to feed you with the milk or a bottle feeding. लेकिन इस बात को बड़े दुख से बताना पड़ता है कि अभी भी आपको दूध पिलाने का अवस्था में हुआ। Even chapter 5 verse 12 also you can see that. और 5 के 12 में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। Just read chapter 5 verse 12. समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह Chapter आवश्यक 6 verse 12. 6 के 12 पढ़ेंगे। ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, हाँ। वरन उनका अनुकरण करो हाँ। जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के बारे होते हैं। Yes, look at that. Chapter 6 talks about slothfulness. और 6ठे अध्याय में देखते हैं आलसीपन के बारे में बताया है। Yes, they became lazy, not growing, sleepy Christians, I should say that. और इस प्रकार से वो बढ़ नहीं रहे थे। इस प्रकार से बोल सकते हैं कि सोने वाले विश्वासी लोग। Very happy because we are saved and we baptized and with that satisfaction. और बहुत खुश थे कि वो बच गए हैं, बपतिस्मा लिया और उस अवस्था में वो बढ़ रहे थे। So we are not called to sleep, but we are called to be zealous for the Lord in our track. हमारी इस यात्रा में हमें बस बचे जाना नहीं है, लेकिन हमें बढ़ना जरूरी है और एक धुन परमेश्वर का होना भी जरूरी है। Hallelujah. Amen. Yes. Am I right? Hallelujah. I think I wanted to make it is not only I'm talking and you are to also talk. और मैं चाहता था कि केवल मैं सिर्फ ना बोलूं, आप लोग भी मुझसे बात करें। Yes. Now, let us see here. So we are brought to an auditorium और हम by the यहाँ writer here. और यहाँ पे जो लिखने वाला है हमें एक ऑडिटोरियम में लेके आता है। Now, for example, an Indian Olympics committee comes and asks one of you immediately come into your home and you are having a very good dinner
dinner or a lunch, immediately say that I am sent to call you or you are chosen as an athlete of this year Olympics. और इस बात को सोचिए कि ओलंपिक का जो मुख्य व्यक्ति है वो आपके पास अपने घर पे आता है, आप खाना खा रहे, नाश्ता कर रहे और बाकी बोलता है कि आपको चुना गया है कि आप इस साल में आप दौड़ेंगे ओलंपिक्स में। You have never gone from your bedroom to your only, you have experience running up to your refrigerator. और आपके पास केवल इतना ही अनुभव है कि अपने बेड से लेके रेफ्रिजरेटर फ्रिज तक आप भागे हो। Even you don't have a practice outside running also. और उसके बाद में भी आपने बाहर भी दौड़ा हुआ अनुभव नहीं होगा। But the representative of Olympics came and said, you are selected as an athlete of Olympics. लेकिन जो क्या कहते हैं ओलंपिक का जो व्यक्ति है उसने इस प्रकार से आपको बताया कि आपको इस साल में चुना गया है दौड़ने के लिए ओलंपिक्स में। What a joy you will have. कितना आनंद आपके पास होगा। Will you say, oh, no, please, just leave me. I don't want to go. आप इस प्रकार से बोले कि नहीं मैं नहीं आऊंगा, मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता हूँ। No, I don't think that you will say that. मैं विश्वास करता हूँ इस प्रकार से नहीं बोलोगे। It's a privilege. Yes. ये बहुत Hallelujah. सौभाग्य है। It's a privilege to run with that track. Hallelujah. सौभाग्य है कि हम उस ट्रैक में दौड़े। From that time onwards, we will be in the training. और इसके बाद से हम जो है शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने आप को समर्पण करेंगे। Your ankles will be made to training to run. और आपके हाथ और पैर उस प्रकार से दौड़ने की तैयारी होंगे। Your body will be trained to run in the track. और आपका शरीर को दौड़ने के लिए तैयार किया जाएगा। So that's what we will be joyful. और इसलिए हम बहुत ही आनंदित होंगे। You know, once a country sent one of the persons to run in the Olympics. और इस प्रकार से एक व्यक्ति को एक देश के लोगों को ओलंपिक्स में भागने का अवसर मिला। It was almost 7,000 people were there. और करीबन 7,000 लोग थे। The Olympics, you know that the running will be there. ओलंपिक्स हम जानते हैं कि दौड़ की प्रतियोगिता होता है। Many of them dropped on the way. और बहुत सारे लोग रास्ते में ही रुक गए। And this person got a hurt in the middle. He was hurt on the leg and all this. और एक व्यक्ति था जो दौड़ रहा था, उसके रास्ते में उसके पैर में चोट लग गया। But still then he began to run. लेकिन उसके बावजूद भी वो दौड़ने लगा। People clapped their hands. और लोगों ने ताली बजाया। And then he finished almost 7,000 miles. और उसने 7,000 मील को पार कर लिया। And he came first. और वो पहले आया। And everybody was happy and waving toward him. और सब लोग बहुत ताली बजा के उसके स्वागत करने लगे, उसको हाथ दिखाने लगे। And some of the people came and asked, और कुछ लोग उसके पास में आके पूछने with लगे, much pain in his heart and bleeding, why did you also could be away and drop, why you came up to the finish? और इस प्रकार से बोला कि बाकी लोग के समान तू भी इस दौड़ से निकल जाता, लेकिन तू कैसे आखिरी तक पहुंच गया? You know what was his reply? उसका उत्तर इस प्रकार से था, My country sent me not to start but to finish. Yes. मेरे देश ने मुझे भेजा है शुरू करने के लिए, लेकिन समाप्त करने के लिए था। Hallelujah. I would like to tell you that before I enter the subject. और मैं यहाँ पे समाप्त करने से पहले इस बात को बताना चाहूँगा, You are chosen before the foundation. Hallelujah. परमेश्वर ने इस सृष्टि की शुरुआत से पहले ही चुना है। Hallelujah. Just to start केवल शुरू करने के लिए नहीं, but to finish. Amen. Hallelujah. करने के लिए। Your aim, your focus must be, I must finish my race. Hallelujah. इच्छा ये होना चाहिए कि मैं किस जो दौड़ को है उससे मैं पूरा करूं। In between there will be a lot of problem. इसके बीच में बहुत सारी परेशानी आ सकता है। Yes, you will be hurt. आपको चोट लग सकता है। You will be bumbled and you will be discouraged and you will be pulled out or pulled back. आपको पीछे खींचा जाएगा, निराशा हो सकती है, ऐसी बहुत सारी बातें इस दौड़ में आ सकता है। Any situation can come. कुछ भी परिस्थितियां आ सकती है, But remember, लेकिन इस बात को मानना है। as Jesus said, Hallelujah. यीशु ने the बोला, one who put the hand to the plow, Hallelujah. never look back, and my aim, my eyesight will be forward. Hallelujah. हाथ रखने के बाद पीछे देखता नहीं है, उसका दृश्य आगे, लक्ष्य आगे की ओर रहना जरूरी है। आप तैयार हैं? Hallelujah. तैयार हैं? Yes, the presence of God is here. परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। कर्तावे। Take a decision. You are taking decision to the Lord in the presence of God. और जो भी निर्णय को अपने थे परमेश्वर की उपस्थिति में लेते हैं, इस बात को जानना जरूरी है। Please don't satisfy Pastor Ambrose or Pastor Packer or Pastor here or anyone. But remember,
you are making decision to the Lord. हमारे पास रामोस के सामने, पास सुधाकर पास के सामने या अन्य फिलिपास के सामने निर्णय को नहीं ले रहे हैं, लेकिन जीवित खुदा के सामने आप निर्णय को ले रहे हैं। Amen. Hallelujah. And the Bible says there are a lot of, I must say that comparison to our life, Christian life in the Bible. और बाइबल में बहुत सारी हमारे जीवन को तुलना करके बताई गई बातें हैं। Metaphorically, there are a lot of things in the Bible. और Compared to many things. और बाइबल में ऐसे हमारे जीवन को तुलना करके बताई गई बातें हैं। Not only we are athletes, but we are good soldiers. हम केवल दौड़ने वाले व्यक्ति नहीं है, हम लोग एक अच्छे सिपाही भी करके बताया गया है। And sometimes as a boxer. और कुछ समय में एक कुश्ती लड़ने वालों को बताया है। Wrestler we are. और कुश्ती लड़ने वाले बताया गया We है। are in the battlefield fighting. हम एक युद्ध के मैदान में लड़ाई कर रहे हैं। We are a farmers. और हम किसान के समान बताया गया है। हम खेती वाला है ना? That word nobody wants. और वो शब्द कोई चाहता नहीं है अब सुनने के लिए। Athlete is very good और जो दौड़ने वाला है उसको अच्छा लगता है सुनने के because लिए, in the running race. क्योंकि हम दौड़ को दौड़ रहे हैं। But खेती वाला है तो लेकिन अगर किसान के बारे में बताएं तो कोई भी attention नहीं देता है ना? no one look at attention. अरे मिट्टी के साथ है ना? It's with the soil. Our fighting with the mitti, right? The earth. And dirt will be completely dirty, sweating, and all these things. And that I don't need. लेकिन वो क्या मिट्टी के साथ खेलना, मिट्टी के साथ काम करना है, पसीने आएंगे, वो वाला जो चित्र है वो अपने बारे में हम जानते नहीं है कि हमें उस तुलना करें। Children of God, workers of God must experience every life which God has given us. और मसीह जीवन होने के नाते हमेशा हर एक अनुभव को हमें अनुभव करना जरूरी है। Amen. That's all the things you hear. We are in the running track. और यहाँ पे इस प्रकार से बताया गया कि हम एक दौड़ के मैदान में हैं। When you say the track and there, please leave away your mind from only running. I mean, the sportsman. I don't know like that. और इस प्रकार से हमें नहीं सोचना कि दौड़ के बारे में बताया तो एक जो एथलीट है उसके बारे में सिर्फ सोचना है। We are all brought into the auditorium with a different running. और हम सभी लोग को ऑडिटोरियम में लेके आया है अलग अलग दौड़ को करने के लिए। I may run as a pastor. आप परमेश्वर के दास एक पासवान की रीति में दौड़ेंगे। You may run, you may do as a referee. Who knows? और आप एक रेफरी के समान दौड़ रहे होंगे। Yes, there are different angles of work. और यहाँ पे अलग अलग दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं। So we must be faithful in the track which we are. और जो हमें दिया गया दौड़ है उसमें हमें विश्वासयोग्यता के साथ में दौड़ना जरूरी है। So don't leave away from our track which God has given us. परमेश्वर ने जो दौड़ हमको दिया है उसमें से हमें निकलना नहीं है। Some people interpret this is as a salvation. We are in the salvation, so we must run. और कुछ लोग इसे उद्धार के बारे में बोलते हैं कि ये उद्धार का दौड़ है और इसमें हमें दौड़ना है। I don't talk in that way. परमेश्वर की इस प्रकार से नहीं बात Because करते। chapter 12 verse 1 very clearly talks. इब्रानी की पत्री 12 का 1 इस प्रकार से लिखा हुआ स्पष्ट रीति में, In this track, saved people are. इस दौड़ में जो उद्धार पाए हैं वही दौड़ रहे हैं। So the first quality of the runner which I would like to tell you is that you must make sure that you are saved. Yes. Hallelujah. पहली जो गुण जो बताना चाहते हैं जो दौड़ रहे हैं उनका ये रहना चाहिए कि आप उद्धार पाए हुए व्यक्ति होना जरूरी है। Wherever I go in the seminaries and classes, when they give me subject, I talk at least 1 or 2 minutes about this one. और जब भी परमेश्वर के दास को सेमिनारी में बुलाते हैं प्रचार करने के सिखाने के लिए 1-2 मिनट इस बात के लिए समय निकालते हैं। I know you may think that we are all saved people and we are studying Bible, then what's the use of talking that? और इस प्रकार से बोलते हैं कि हम सब उद्धार पाए इसलिए हम बाइबल जो पढ़ रहे हैं इसके बारे में क्यों बात करना है। Once I was talking, I am teaching book of Hebrews. In the 3rd year, final year students are going to take the BTS certificate within 6 months. और एक बार परमेश्वर के दास बीटीएच की क्लास को पढ़ा रहे थे, 2-3 महीने के अंदर उनका ग्रेजुएशन होने वाला था। I asked a question. एक सवाल को पूछा इस प्रकार से, Are you saved? क्या आपने उद्धार पाया है? They don't know. वो नहीं जानते हैं। What for the BTS? Go to get BTS. Are you saved? They don't know how to answer it. और अच्छी बात है बीटीएच प्राप्त, लेकिन उद्धार पाए उसके बारे में बोलना नहीं जानते हैं। So remember, you are here brought by the Lord, not by chance. In this track,
That is your first quality, is that you are a saved person. Yes. Hallelujah. इस बात को समझना है कि पहला जो गुण होना चाहिए इस दौड़ में दौड़ना है तो आपने उद्धार को पाया है। Are you saved, everybody? क्या आप उद्धार को पाए हैं? Hallelujah. You have still some doubt in your mind, that shaking of whether I am saved or not. या आपके मन के अंदर ये सोच है कि आप उद्धार को पाए हो या नहीं पाए हो? It happens sometimes. इस प्रकार से हमारे जीवन में सवाल आता है। One or two verses I read and move forward. एक दो पदों को पढ़ के आगे बढ़ेंगे। Just see the book of Romans chapter 10 verse 9 and 10. Verses 9 and 10. रोमियो की पत्री 10वें अध्याय 9 और 8 पद Yes. 9 और 10 पद को पढ़ेंगे। कि यदि तू अपने मुंह से Ah. यीशु को प्रभु जानकर Yes. अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे हाँ। कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, हाँ। तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। Amen. So this is what exactly surety giving you or giving us that we are saved. और ये पद को हमने पढ़ा इस बात को बताता है कि कैसे हम जाने कि हमने उद्धार को सचमुच पा लिया है। The devil may come and tell you, yes, no. There is still doubt. The doubt may put in your heart and mind. और शैतान हमारे मन में सोच को लेके आ सकता है, विचार को लेके आ सकता है, संदेह लेके आ सकता है, नहीं आप उद्धार को नहीं पाए हो। As I have read in the book regarding Martin Luther. और मार्टिन लूथर के बारे में परमेश्वर के दास ने एक किताब में इस प्रकार से पढ़ा। Once he was praying in his bedroom. और एक बार वो अपने बेडरूम में प्रार्थना कर रहे थे Immediately a board came in front of him. और उसके सामने एक बोर्ड आया Wrote all the sins of his life. और उसके जीवन के सारे पापों के बारे में उस बोर्ड में दिखा रहा था। Martin Luther was so much painful, and he asked, Lord, what is this? Didn't I get forgiveness? He was so much unhappy. और इस प्रकार से दुख हुआ, परमेश्वर क्या इन पापों से मुझे क्षमा नहीं मिला है क्या? इस प्रकार से बोलने लगा प्रार्थना में। Okay, it was a hand of a devil came and wrote it there. All the sins so that his attention should be devoted and he must be away from the Lord. और इस प्रकार से शैतान उसके मन में सोच लेके आया था उसके पापों के बारे में ताकि वो परमेश्वर से हटकर वो अपने बारे में सोचने लगे। As soon as the prayer is over, और जैसे प्रार्थना समाप्त हुआ another hand came there और एक और हाथ आया and wiped out all that और वो सब कुछ हटा दिया उसके सामने से। and wrote that washed by the blood of Jesus. Hallelujah. यीशु मसीह के लहू के द्वारा सब कुछ धो दिया गया है। Hallelujah. See the confidence. इस प्रकार से अपने जीवन में कॉन्फिडेंस को लेके आना है। Immediately one Bible verse came in his mind. और जल्दी से उसके मन में एक वचन आया Gospel of John chapter 10 verses 10 and 28. और 10वें अध्याय का 10 और 28 पद को। I want you to read it there. John 10, 10 and 28. और मैं चाहता हूँ कि आप उसको पढ़ेंगे यूहन्ना 10 का 10 और 28 पद को। It says, I came to give life more abundant. मैं क्या है कि आपको बहुतायक जीवन हो और वो जीवन बहुतायक से हो। Everyone who is in the track or running, you are a runner. Remember, you not only you have life, but you have life more abundant. और जो व्यक्ति इस दौड़ में दौड़ रहे हैं, हम इस बात को जानना है कि आप केवल जीवन नहीं होना है, लेकिन बहुतायक जीवन आपके पास होना जरूरी है। Because in running this track, we need strength. क्योंकि हमें इस दौड़ में दौड़ने के लिए बल का जरूरत है। So you make it sure that you have not only life more abundant. इसलिए हमें इस बात का निर्णय लेना जरूरी है कि हमारे पास केवल जीवन नहीं है, लेकिन बहुतायक जीवन हमारे पास है। Hallelujah. There's a difference between life and life more abundant. और ये क्या अंतर है जीवन और बहुतायक जीवन के बीच में? Life is only once in life. और जीवन एक ही बार होता है। You receive only once in life. हम एक बार जीवन को प्राप्त करते हैं, It's not every day. हर बार नहीं होता है। But life more abundant. लेकिन बहुतायक जीवन जो है You enjoy every day each area of experience. हर एक अनुभव में हम उसको अनुभव करते हैं, खुशी मनाते हैं, आनंद के साथ उसको जीते हैं। Just Amen. an example from the Bible. बाइबल से उदाहरण को बताना चाहते हैं। You know, Lazarus was dead and he was inside the tomb. लाजर मर गया था और उसे कब्र में दफना दिया गया था। Jesus came और यीशु मसीह आया and he said, Lazarus, come out. और यीशु मसीह ने बोला लाजर बाहर आ जा। The word of Jesus brought Lazarus out with life. Hallelujah. यीशु मसीह ने सबके सामने
लाजर जो मरा हुआ था वो कब्र से बाहर आ गया। Amen. Understand that? क्या आप इस बात को So you समझते receive हैं? life. हम जीवन को प्राप्त करते हैं He is no more inside the tomb. और उसके बाद हम कब्र में नहीं रहते हैं, He is Amen. outside. वो कब्र से बाहर आ In गया front of Jesus Christ. Hallelujah. किसी के सामने आ गया, But not life more abundant. लेकिन बहुतायत जीवन से नहीं आया था, Only life. केवल जीवन आया था। Jesus is there. यीशु मसीह उसके पास में है, Lazarus has the life. लाजर को जीवन आ गया, But he can't see Jesus. लेकिन वो यीशु मसीह को नहीं देख सकता He था, can't speak to Jesus. यीशु मसीह बात नहीं कर सकता He था, cannot get up and give shake hand to Jesus. यीशु मसीह को हाथ नहीं दे सकता था, He cannot praise. वो धन्यवाद नहीं कर सकता था, He cannot walk with Jesus to the home. और यीशु मसीह के साथ में वो घर में वापस नहीं जा सकता था। That means he did not receive life more abundant. इसका मतलब ये है कि वो बहुतायत जीवन को नहीं प्राप्त किया था। Also studying Bible, you need to know that whether you receive life more abundant or you enjoy in the life more abundant. Yes. और जो बच्चों को पढ़ते हैं, आप इस बात को समझना है कि आप प्रभु के जो जीवन है, बहुतायत जीवन को अनुभव करते हैं, आनंद के साथ आप जीवन को व्यतीत करते हैं कि नहीं। So what did Jesus say? यीशु मसीह ने क्या बोला? Loose him, let him go. और ये बोला कि उसके जो बंदर है उसे खोल दो और उसे जाने दो। Hallelujah. Hallelujah. From every area, I don't want to talk more about it. The covering, the cloth, great cloth was there. They began to lose. हम इस बात को देखते हैं कि उसके ऊपर जो कब्र में जो कपड़ा बांधा हुआ था, वो सारा उसमें से खोल दिया This गया। is not a one-day case. वो एक दिन का काम नहीं है, We experience as we run. और हम जैसे आगे दौड़ते हैं, हम अनुभव करते हैं, There are a lot of clothing around us. और हमारे ऊपर भी बहुत सारे ऐसे कपड़ों को बांधा गया है, Not to allow us to finish our course, और हमारे दौड़ को पूरा ना करने के लिए ऐसे कपड़े बांधे गए but हैं, our aim is to finish the course. और हमारा उद्देश्य है कि हम इस दौड़ को पूरा करें। So we need to get a loosing of every area. और हमारे जीवन में हर एक जो बंधने हैं वो खुलना जरूरी है। So John 10:28 says the confidence in our life. और यूहन्ना 10:28 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, You know what is that? और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, हाँ। वे कभी नष्ट ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। Huh? Yes. I am. You are in my palm. और वो मेरे हथेली में है। Listening everybody? Hallelujah. इस बात You को and समझते I हैं। are in the palm of Jesus Christ, palm of God. और आप परमेश्वर के हाथ में है, No power can take you out of it. Amen. Yes. Hallelujah. परमेश्वर के हाथ से कुछ भी आपको छीन नहीं सकता। Amen. How many of you believe that? Hallelujah. विश्वास करते I हैं, am in the palm of God. परमेश्वर के हथेली में मैं हूँ, That's a sure your salvation. और उद्धार का एक बहुत बड़ा एक निश्चय है। I'm a saved person. मैं उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हूँ। One who is in me is greater than one who is in the world. जो मेरे अंदर है वो संसार के में से भी बढ़कर है। Hallelujah. 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 So that's the first quality of a runner. So we are just going with the runnerness. Okay? और ये एक जो दौड़ने वाला व्यक्ति का गुण है, हमें समझना जरूरी है। Finish the race. दौड़ को पूरा करना है। So one who is running in the track is a runner. और जो भी दौड़ता है उसको दौड़ने वाला व्यक्ति कहा जाता है। So the first thing a runner quality is that he must be a saved person. और पहला जो गुण जो दौड़ने वाला व्यक्ति है उसके जीवन में होना चाहिए कि वो उद्धार पाया हुआ होना है। Everybody make sure that. सभी लोग इस बात को निश्चय करना जरूरी है। It is not a matter, it's not a shameful thing that if you are not sure, go to your pastor after this and ask and doubt and get surety of your salvation. I know that you are not saved, but sometimes we have some wavering mind. और ये शर्म की बात नहीं है। सत्र खत्म होने के बाद में आप पासवान के पास जा सकते हैं। आप बोल सकते हैं हमारे मन में ये सोच आता है कभी-कभी कि हम उद्धार पाए हैं या नहीं पाए हैं। Why I talk all this? क्यों इस प्रकार से बोलते I हैं? have experienced in a lot of pastors. मैंने पासवानों को इस प्रकार से देखा है। They are ministering in the church, but they are not sure of their salvation. वो सेवा करते हैं लेकिन वो इस बात को नहीं जानते हैं, उनको निश्चय नहीं कि उद्धार पाए हैं कि नहीं पाए हैं। Personally, I have counseled many of the pastors कुछ पासवानों को परमेश्वर के दास ने काउंसलिंग दिया है and made them surety of their salvation. और उनको उद्धार के बारे में उनको निश्चय करवाया So है। that's why I'm talking about it. इसलिए इस प्रकार से बोल रहे हैं। If I am not sure about salvation, why do I teach you? अगर मुझे उद्धार के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको क्यों सिखाऊंगा? I am making you surety of your salvation, but where I am still, wavering.
और मैं आपको उद्धार के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन मैं अपने ही विषय में उद्धार के बारे में मेरे को एक संकोच है। So the first quality of a runner. Okay, if you want to finish our topic, finishing the race. So if you want to reach there, then make sure that you are saved. और पहली बात हमें समझना है कि आपको दौड़ को पूरा करना है, तो एक गुण जो हमें होना चाहिए कि हम इस बात को जानते हैं कि निश्चय हमको कि हमने उद्धार को पाया है। Hallelujah. And the second one, और दूसरी बात, Proverbs chapter 17 verse 22. नीति वचन 17 का 22 पर। Proverbs 17:22. नीति वचन 17 का 22। Yeah. मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां टूट जाती हैं। Oh yes. So I would like to bring the point secondly, attitude. और Attitude. जो दूसरी बात बताना चाहते हैं वो है हमारा मनोभाव के बारे में। हाँ, हमारा मनोभाव कैसा होना चाहिए? हमारा मनोभाव किस प्रकार से होना चाहिए? Here I would like to take it just a point. Their attitude is joyful. और यहाँ पे जो बताया गया जो मनोभाव है वो आनंद का होना जरूरी है। Hallelujah. Joyful heart is a good medicine. मन की आनंद अच्छी औषधि है। You are running in the track. आप दौड़ में दौड़ रहे हैं, Your heart is not joyful. लेकिन आपका हृदय आनंदित नहीं है तो You will be always sick. आप हमेशा बीमार रहेंगे। You won't be able to run as God wants you to run it. परमेश्वर इस प्रकार से चाहते उस प्रकार से आप दौड़ नहीं पाएंगे। So joyful heart is a good medicine. और मन की औषध, मन का आनंद एक अच्छी औषधि है। A healthy heart, एक जो अच्छा तंदुरुस्त हृदय है, a confident heart एक जो निश्चय करने वाला हृदय है, is a medicine example. Hallelujah. और वचन के आधार पे वो एक अच्छा एक औषधि है। It is not only for you, वो केवल आपके लिए सिर्फ नहीं है, but your neighbor who is sitting. आपके पड़ोसी के लिए भी वो अच्छी बात है। Hallelujah. Hallelujah. Jesus said, यीशु मसीह ने बोला, those who believe in me, drink this water. और जो यीशु पर विश्वास करेंगे वो इस पानी को पिएंगे तो From them, the rivers of living water. और उनके में से जीवन का सोता बहेगा। Amen. So it goes to others. अब इस बात को समझना है कि दूसरों पे वो पहुंचता है। Not only you are, but others are strengthened. केवल हम नहीं सिर्फ है, लेकिन दूसरे के पास भी वो पहुंचता है। So when we have that attitude, और हमारे पास वो मनोभाव है तो first thing here in the attitude, joyful heart, it should be there. पहला जो हमारा मनोभाव होना चाहिए वो है मन का आनंद होना जरूरी है। But remember here next, but a crushed spirit dries up the bones. परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। Crushed one. मन के टूटना, It is not as David says in Psalms, broken heart and contrite spirit. That's not the word here. या इस प्रकार से दाऊद वर्ष 51 में कहता हुआ टूटा हुआ पिसा दिल उस प्रकार से नहीं लिखा हुआ है। Here the crush is different. यहाँ पे जो टूटा हुआ दिल है वो अलग प्रकार से लिखा Due हुआ to है। some disappointment, your mind is broken. और आपको निराशा हो, उस कारण से आपका मन बैठा हुआ है। That affects your bone. वो आपके शरीर को भी शरीर को भी आपको उस प्रकार से प्रभावित करता है। It is like a cancer. It will be like a cancer. वो एक कैंसर के समान हो सकता If है। you don't get good treatment, आपको अच्छा सा ट्रीटमेंट नहीं मिला you तो will not be able to run forward. आप आगे नहीं दौड़ पाएंगे। So it should get a good treatment. इसलिए आपको एक अच्छा ट्रीटमेंट का जरूरत है। So remember always, a joyful heart is a good medicine. इसलिए हमें इसे याद करना है, मन का आनंद एक अच्छी औषधि है। Amen. So when we have that good mind, और जब हमारे पास एक अच्छा मन होता है attitude toward my brother, और हमारे को अच्छा भाई के लिए अच्छा मनोभाव होता है, very good. तो अच्छी बात है। And I see pastor and we were together और पास बात को देखकर इस बात को याद करते एक साथ थे and God took him to the foreign countries. और परमेश्वर उनको बहुत विदेश राज्य में लेके गए My attitude should be very happy. और मेरा जो मनोभाव उनके लिए अच्छा होना चाहिए। If attitude is not good, and if I don't have a joyful heart, और एक खुशी का आनंद में नहीं है तो then I will have jealousy too. और उसके सामने मुझे ईर्ष्या होगा। हम दोनों पढ़ने जाइए कि सामने एक स्कूल में अभी भी इंडिया में ये फॉरेन कंट्रीज में We sat together in the same class, but I am in India and he is in abroad. when if I give hand, I'm not even fully giving. और मैं अच्छे मन के साथ उनको हाथ नहीं दे पा रहा हूँ My heart gone, attitude gone. और
और मेरा मनोभाव हट गया, मेरा दिल का टूटा हुआ दिल I है don't have a joy toward him. और Why उसके not? एक मन की आदत में उनको मिल नहीं पा रहा हूँ। But rather, what should I say? लेकिन मैं क्या कहना चाहिए, What should be my attitude? मेरा मनोभाव किस प्रकार से होना चाहिए? Thank God, Pastor Anna Philippians states God is using him wonderfully here for the many servants of God are blessed by him. I should have that attitude. हालेलुया। मेरा मनोभाव इस प्रकार से होना चाहिए, परमेश्वर के दास को परमेश्वर यूएस में ले गए हैं, बहुतों के लिए आशीष हो रहे, प्रभु के नाम की महिमा हो। That should be, that's called a medicine. और इसे बोलते हैं औषधि के बारे में। If I don't have, then the bones, my bones of life is going and I am down and down. और नहीं तो मेरा जो हड्डियां है वो सूखी जाएगी और मैं नीचे नीचे होता जाऊंगा। So your running should be very good. इसलिए हमारा दौड़ अच्छे से दौड़ना है। Sisters and brothers, भाइयों बहनों, how is your attitude toward your friends, even your family, toward your husband, toward your wife? और कैसा है आपका रिश्ता आपके पति से, पत्नी से, आपके घर में, आपके भाई बहनों से, माँ बाप से कैसा है? How is your attitude toward your children, आपका मनोभाव किस प्रकार से आपके बच्चों से, your pastors? आपके पासवान से? If pastor doesn't come for 1 week to visit, Bapre, the attitude changes. और पासवान एक सप्ताह में आपके घर पे नहीं आता है, क्या आपका मनोभाव बदल जाता है क्या? Some people want pastor always in their family. और कुछ लोग चाहते हैं कि पासवान हमेशा उनके घर पे आए, A pastor should come and eat only in their family. और कुछ लोग चाहते हैं कि पासवान केवल उनके घर पे आए, उनके साथ खाना खाए, Whatever they say, a pastor has to do it. और जो भी वो चाहते हैं पासवान करना चाहिए। If not, attitude is changed. और वैसे नहीं करते हैं तो मनोभाव बदल जाता है। If the pastor does, they will say, we have a wonderful pastor. और जिस प्रकार से वो चाहते हो करते हैं तो बोलते हैं कि पासवान हमारा बहुत ही अच्छा पासवान है। Hey, don't say wonderful. It will be wonderful. अब इस प्रकार से मत बोलना है वंडरफुल, वो फूल हो जाएंगे। So our attitude must be changed. हमारा जो मनोभाव है बदलना जरूरी है। Think about your own sister in your family. आप खुद के बहन के बारे में सोचिए, How is your attitude? अब उनके साथ आपका मनोभाव किस प्रकार से है? Jealousy is too much. ईर्ष्या आपके मन में है क्या? That's what this verse talks about. और ये वचन हमें इस बात को सिखाता है। If jealousy once entered inside the heart, और आपके मन में ईर्ष्या है तो it will capture all our life and you won't be able to move forward. वो हमारे मनों को पकड़ लेगा और हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। So make a treatment for jealousy. और इसलिए ईर्ष्या के लिए आप में एक ट्रीटमेंट का जरूरत है। Every day when we get up in the presence of God morning, और हर दिन सुबह जब परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो उठते हैं, ask the Lord to give you a joyful heart. आप इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर एक मन का आनंद मेरे जीवन में हो। Even if you have no support, आपके पास में आपको सहायता करने के लिए आर्थिक सहायता नहीं है तो भी, even if you don't get the support, आपको आर्थिक सहायता नहीं मिल रहा है तो भी, give thanks to God with a joyful heart. एक मन के आनंद के साथ में परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। I may have to share my testimony sometime with the subject as I take it. और ये जो विषय को ले रहा हूं, परमेश्वर के दास अपने अनुभव को बताना चाहते हैं। And I was called by the Lord in 1977. 1977 के समय में परमेश्वर के दास को प्रभु ने बुलाया Still then there was suffering. और उस समय बहुत कष्ट का समय था I am in the track. और परमेश्वर के दास दौड़ में थे Lot of suffering came me to be pulled back. और बहुत सारे समस्या परेशानी आया उनको दौड़ से पीछे खींचने के लिए, But the Lord gave me a joyful heart and moved forward. लेकिन परमेश्वर ने मन का आनंद दिया उनको आगे बढ़ने के लिए। I came from Nagaland, और परमेश्वर के दास नागालैंड से आए, having nothing in my hand. मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। परमेश्वर के When दास I left Nagaland and came to Delhi, nothing in my hand. नागालैंड को छोड़ जब यहाँ पे आए तो कुछ भी नहीं था My हाथ में। ministry was completely on faith life. और परमेश्वर के दास का जो सेवकाई है विश्वास के साथ में वो जी रहे I थे started my ministry. और सेवकाई को शुरू किया। Meanwhile, my wife had a problem, और उनकी बीवी को परेशानी हुआ, बीमारी हुआ, which I never knew in my life. वो नहीं जानते थे। She had a problem from the childhood. बचपन से उनको एक परेशानी था। We have been not getting a child for 6 years. 6 साल तक मेरी बीवी को, परमेश्वर के दास को बच्चा नहीं हो रहा I था thought that maybe some problem. It's okay, God will deal with that. और इस प्रकार से जगह परेशानी है, परमेश्वर उसमें से कार्य करेगा। Then we cut it short, and she was making treatment for that. और उसके लिए परमेश्वर की दासी जो थी वो ट्रीटमेंट ले रही थी And the 6th year old, 7 years, she was conceived. और 7वें साल में परमेश्वर की दासी ने गर्भवती हुई। But it was a shock to me. लेकिन वो एक बहुत बड़ा एक चौंकाने वाला बात था परमेश्वर के दास के लिए। I got a news from somebody that my wife has got
heart problem. और इस प्रकार से उनको अब पता चला कि उनकी जो बीवी है उनको हृदय का रोग है। That's why she has been not having a child for the last 6 years. और इसीलिए 6 साल से उनको बच्चा नहीं हो रहा था। When I heard, I was shocked a bit. Of course, we are human beings. और जब परमेश्वर के दास ने इस बात को सुना तो वो चौंक गए कि हम मनुष्य हैं। See what I'm talking? There are problems in our track. ये बताना चाहते हैं कि हमारे दौड़ में हमें कुछ परेशानियां आ सकता है। You may also face the same thing. अब आप भी इस बात को अनुभव कर सकते हैं। And then I prayed to the Lord, Lord, what should I do now? और इस प्रकार से परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किया प्रभु से, प्रभु मैं क्या करूं? So I went to the doctor, which she was making treatment. और जिस डॉक्टर के पास में मेरी पत्नी परमेश्वर के दास की वो ट्रीटमेंट ले रही थी वहां पे गया Without her knowledge. और उनको नहीं बताया। Then you may think that आपस में कुछ mind nice days or not this. इस प्रकार नहीं कि हमारे बीच में कुछ मनमुटाव हो गए, इस बात से नहीं। We have no problem still. अभी भी हमारे बीच में कोई परेशानी नहीं है, मनमुटाव नहीं है। But I wanted her to know that I do not know about this problem. मैं इस बात को नहीं बताना चाहता था कि मैं जान गया हूँ कि So उनको हृदय का रोग है। I went to the doctor. और डॉक्टर के पास में गया I said, doctor, the sister who is coming to you is my wife. और जो बहन आपके पास में आती है वो मेरी पत्नी है करके बोला। I heard she has this problem. So this evening she is coming to you for checkup. Please kindly take in and then make a checkup. Don't say that I have come and reported. और इस प्रकार से बोला कि मेरी बीवी आती है, आज शाम को भी आएगी और वो ये बीमारी है, आप चेकअप करना है और इस बात को बताना है करके बोला। By that time it was 2.5 months of conception. और उस समय तक 2.5 महीने तक वो गर्भवती हो चुकी थी। And now doctor came and checked, and doctor was, very much disappointed and scolded my wife like anything. और डॉक्टर ने इस बात को देख के चौंक गए और मेरी बीवी को उनने डांटा। So he wrote, I cannot continue the treatment. Go to all India. और इस प्रकार से बोला कि मैं ट्रीटमेंट को आगे नहीं बढ़ा सकते, आपको ऑल इंडिया में जाना पड़ेगा। She came to me with that letter. और उसके बाद में वो मेरी पत्नी मेरे पास में आई। She was so disappointed. वो बहुत निराश थी। And I said, what happened? और इस प्रकार से बोला क्या हुआ? She showed me the letter. और उन्होंने वो जो डॉक्टर का पत्री है मुझे दिखाया। I read that and said, okay, don't worry about it. और इस प्रकार से मैंने बोला कोई बात नहीं, आपको इस प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। We'll go to all India. हम ऑल इंडिया हॉस्पिटल I जाएंगे। went and got the admission, the treatment started. और मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट शुरू हो गया। It was at the 7th month, toward the end of 7th month, again problems started. और 7वें महीने में आगे दोबारा से प्रॉब्लम हुआ। One Sunday morning, I had to go to the church, and she got bleeding totally. और एक संडे को रविवार को कलीसिया में गए तो उस समय में उनका लहू बहने का बीमारी हुआ। I prayed, Lord, keep her here, let me go to the church. और इस प्रकार से प्रार्थना करके उनको घर पे छोड़ के परमेश्वर के दास कलीसिया में गए। I just went to the church and came back, and I saw the same man. और जब वापस आए तो इसी बात को देखा उनको। I took her to the hospital. अस्पताल में लेके गए। It's almost reaching 8 months. और 8वें महीने तक पहुंच गया था। And then the doctors, admitted. और डॉक्टर लोगों ने उनको अस्पताल में भर्ती किया। All the believers came. और सारे विश्वासी लोग आ गए। The very evening, I had a class in Ladosara. और उसी शाम को मेरे को लाडो सराय में क्लास था। It was about baptism. और बपतिस्मा के बारे में था। A contention was between those people who do not want baptism, who want baptism. I had to give the answer and teaching. और उन्हें सिखाना था कि जो लोग चाहते हैं बपतिस्मा लेने के लिए और जो नहीं चाहते हैं बपतिस्मा लेने के, उनके बीच में मनमुटाव के बारे में सिखाना था। I was thinking, Lord, what I will do? My wife is here fighting between death and life. The doctor said, we can't do anything. Immediate operation must be there. और इस प्रकार से मेरी बीवी जो थी वो जीवन और मृत्यु को सह रही थी और डॉक्टर लोगों ने बोलता है कि उनका ऑपरेशन का जरूरत है जल्दी से। I had to go to the class. और मुझे क्लास भी जाना था। And some of the mature believers said, Pastor, don't worry. You go, that's very important. People are waiting for you. We will see her. और विश्वासियों ने इस प्रकार से बोला कि आप क्लास में जाइए, हम यहाँ पे आपकी बीवी को देख लेंगे। Believers were very strong with me. विश्वासी लोग बड़े शक्ति के साथ मेरे साथ खड़े I थे। went to the class. और मैं क्लास में गया। And then here the problem increased. और यहाँ पे जो परेशानी है वो बढ़ गया। Let me cut short and I want to tell more about it, that inside the child was twisted and was not able to get the oxygen, and because her womb was not, uterus I should say, uterus was not expanding
It was short, so child was not able to grow. और इस प्रकार से था कि उनके यूट्रस में कुछ परेशानी था, तो बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था और बच्चे को बढ़ोतरी भी नहीं हो रहा था शरीर के अंदर। When I came back and I heard about it, I went to the doctor. Doctor said, we cannot promise you both mother and child. If the operation is done, things will be worse. और इस प्रकार से डॉक्टर ने बोला कि हम नहीं बता सकते कि बीवी बचेगी या बच्चा बचेगा, ऑपरेशन करेंगे तो कुछ बात और परेशानी हो सकता है। Because anesthesia is given means her heart was completely holes, totally holes. और उनको एनेस्थेसिया दिया था और उनका हृदय में बहुत बड़ा छेद था And not able to give to anesthesia. और उनको एनेस्थेसिया नहीं दे So सकते if हैं। they do it, they have to do it kacha. Completely that. That's what they say. और उन्होंने बोला कि बिना जो एनेस्थेसिया दिए हुए जो दवाई होता है उसे बिना देके उनको ऑपरेशन करना पड़ेगा। I prayed in the operation theater and then I just came out. और उस प्रकार से परमेश्वर के दास वहां जाके वापस आ गए And the doctors, band of doctors were there. और बहुत सारे डॉक्टर लोग वहां पे थे Thank God the church was praying. और कलीसिया प्रार्थना कर रही थी Nothing happened all through night. और पूरी रात में कुछ भी नहीं हुआ। Every morning, main doctor came and took for ultrasound, and after that she had a pain. They took her to labor room, and the child came out. They pushed out without any operation. और सुबह के समय डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया, उसके बाद में उनको परमेश्वर के दास की बीवी को दर्द हुआ और उनको लेबर रूम में ले गए और उसके बाद में बिना ऑपरेशन का बच्चा उनको मिल गया। The child was only 900 grams. और बच्चा केवल 900 ग्राम का था Thank God today she is 26 years old. और आज वो 26 साल की हो चुकी है। So what I'm talking about? और इस प्रकार से बताना चाहते हैं Sometimes, in our lives things may come to disappoint us, to change our attitude, our mind's attitude. और इस बात को बताना चाहते हैं हमारे दौर में कभी कभी हमारे जीवन में परेशानी आती है तो हमारे मनोभाव जो है बदल सकते हैं। So be strong in the Lord. लेकिन प्रभु में हमेशा बलवंत रहिए, Go with the word of God. परमेश्वर के वचन के साथ आगे बढ़िए। And the third point. और तीसरा पॉइंट इस प्रकार I'm not से explaining more about it. I just go serially, I just say and go. और ज्यादा बताना चाहेंगे लेकिन उसको आगे बढ़ने The चाहेंगे। third point is baptized one. और 32वां पाए हुए लोग The one who is in the track. और जो रास्ते में है Acts chapter 2 verse 41. प्रेरितों का 2 का 41 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, Acts 2:41 says that one who receives the word must be baptized. जो वचन को स्वीकार किया है वो 32वां को लेना जरूरी है। Baptism is not for salvation. 32वां उद्धार के लिए नहीं है, Remember, saved people should be baptized. जो उद्धार पाए हैं 32वां लेना है। So that's what exactly the process. और इस प्रकार से क्रम है, उस प्रकार से हम उसे देखते I हैं don't want to stand there. और वहाँ पे नहीं रुकना चाहते हैं। And then the fourth one is character. और चौथी बात है हमारा जो स्वभाव है। In this running race, and we should have a character. What kind of character? और किस प्रकार का स्वभाव हमारा होना चाहिए जब हम इस दौड़ में दौड़ते हैं। Read that Galatians chapter 5 verse 22 to 23. गलातियों के पत्र 5 का 22 और 23 पद को पढ़ेंगे। I think we know that verse. Galatians 5:22 to 23. गलातियों के पत्र 5 का 22 और 23 हम जानते हैं। Please. पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, हाँ। धीरज, हाँ। कृपा, भलाई, हाँ। विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। Amen. Hallelujah. In this running race, a runner should have exhibit proper character. और जो दौड़ने वाला व्यक्ति है उस दौड़ने के समय उसको एक अच्छा स्वभाव होना जरूरी है। I cannot stand here. The character itself will have 2-3 hours. और स्वभाव के बारे में बताने के लिए 2-3 घंटे का जरूरत पड़ सकता It है। says, but the fruit of the spirit is और आत्मा का फल इस प्रकार से लिखा हुआ है, love, joy, long suffering, gentleness, goodness, and meekness, and temperance. Against there is no law at all. प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम और इसके विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। Listening, everybody? आप सब सुन रहे हैं? A runner should have a proper character. और दौड़ने वाले व्यक्ति को एक अच्छा स्वभाव होना जरूरी है। What is written in Hindi? What do you say? Once again, read it. और हिंदी में किस प्रकार से लिखा हुआ द्वारा पढ़ेंगे? पर आत्मा का फल आत्मा का फल फल। एक वचन ना बहुवचन है। एक वचन है ना। फिर नीचे कितना लिखा है? बहुत सारे। 9 है ना? 9। क्यों? फल लिखा है। Fruit in English also written fruit of the spirit is. Then 9 it should be fruits according to English grammar grammatically.
के ग्रामर के अनुसार हम देखें तो फलों करके लिखना चाहिए, लेकिन वहाँ पे फल लिखा हुआ और 9 फल के बारे में बताया गया हुआ है। In 1 Corinthians and chapter 12, I think gifts of the Spirit, right? Gift of the Holy Spirit. 9. और पहला कुरिन्थी 9वें अध्याय में भी जो है 12वें अध्याय में 9 फलों के बारे में 9 वरदानों के बारे में बताया गया हुआ Are है। there plural gifts of the Holy Spirit? वहाँ पे पवित्र आत्मा के वरदानों करके लिखा गया है, But here, fruit of the Holy Spirit. और यहाँ पे आत्मा के फलों के बारे में बताया गया है। क्यों ऐसा लिखा? ऐसा क्यों लिखा गया है? There plural, here singular. वहाँ पे बहुवचन में लिखा है, लेकिन यहाँ पे एक वचन में लिखा हुआ है। Any idea? आप जानते हैं किस प्रकार से ऐसा क्यों है? Talk one another. आप उससे बात एक फल के करिए। अंदर ही दो प्रकार हैं। एक फ्रूट एक है, हाँ। उसमें 9 टाइप क्योंकि क्या करना है? अलग 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 एक व्यक्ति में और दूसरा एक व्यक्ति में और अलग अलग व्यक्ति में। एक व्यक्ति Very good answer. Why it is written fruit of the Spirit singular? 9 must be in each believer, each worker. हमें इस बात को समझना है, वहाँ पे जो 9 गुणों को बताया गया, वो 9 के 9 जो फल है वो एक व्यक्ति में होना जरूरी है, इसलिए वहाँ पे फल करके बताया है। But the Holy Spirit, gifts of the Holy Spirit, not necessarily that all should be in one person. लेकिन जो पवित्र आत्मा का वरदान है वो सब वरदान एक व्यक्ति में होना जरूरी नहीं है। There is not according to our desire, Bible says, as the Holy Spirit gives. वहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार वरदानें मिलती है। If you have no gift, don't get angry. अगर आपके पास वरदान नहीं है तो आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। Pray for so many years, but still gifts of the Holy Spirit is not there. Don't get angry to God. As the Spirit gives, He knows to whom He has to distribute. और आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जिसको देना चाहता है उसको वो वरदान को देगा। हालेलुया। The fruit of the Spirit is लेकिन यहाँ पे आत्माओं का वरदान के फलों के बारे में लिखा हुआ है 9. 9 के बाद लिखा हुआ है। So that's what exactly there is inner fruit and we have outer fruit also. और हमारे अंदर में फल होता है और बाहर भी फल होता है। In this running race, और इस दौड़ में we must have inner fruit and outer fruit. हमारे अंदर भी फल होना जरूरत है, बाहर भी फल होना जरूरत है। So 2 kinds of fruits are there. 2 प्रकार के फल है। Outer fruit is that as we move and we invite others to this track. और हम जब इस बात में दौड़ते हैं तो हम दूसरों को भी हम इस दौड़ में बुलाते हैं। Winning souls, that's called winning और souls. इसका मतलब है कि हम आत्माओं को जीतते हैं। In what is that? Gospel of John chapter 4. यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय में Jesus said, यीशु मसीह ने बोला, lift up your eyes. अपने आँख को उठाइए, The fields are ready for the harvest. जो खेत है तैयार हो चुके हैं कटनी के लिए। So that's what the outer fruit. और वो है बाहर का फल। We have a responsibility. और ये हमारा कर्तव्य है। You are in this track. आप इस दौड़ में हैं Pray so that somebody also come and in the track. और प्रार्थना करना है कि दूसरे लोग भी इस दौड़ में आए। And there you run, you should have inner fruit. और जब आप दौड़ते हैं आपके अंदर फल होना चाहिए। Love. प्रेम। Hello. हेलो। Love, है ना? प्रेम। Examine ourselves. What kind of love we have? हमें इस बात को ध्यान देना है किस प्रकार का प्रेम हमारे अंदर है। You will say God's love. That's right. आप बोलेंगे परमेश्वर का प्रेम, वो सही है। When you enjoy God's love, जब आप परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करते it हैं, should flow from you to others. आप में से वो दूसरे की ओर जाना जरूरी है। Your Christian life started and think about, could you love others as you love yourself? क्या आप इस बात को सोच सकते हैं कि जैसे आप अपने आप से प्रेम करते हैं वैसे आप दूसरे से प्रेम करते हो क्या? We have all the gifts of the Holy Spirit. हमारे पास आत्मा के सारे वरदान हैं। We speak in tongues, हम अन्य भाषाओं में बात करते हैं, different tongues. अन्य अन्य भाषाओं में बात करते हैं। But the Bible says, ये बाइबल कहता है, if you have no love, अगर आपके बाइबल कहता है कि प्रेम नहीं है तो there is no profit of speaking in tongues. हालेलुया। कोई काम नहीं है अन्य भाषाओं में बात करने से। That means without love also you can speak in tongues. इसका मतलब ये है कि प्रेम नहीं होने के बावजूद भी आप अन्य भाषाओं में बात कर सकते हैं। But it is important that you should have love. लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हमें प्रेम होना अनिवार्य है। The love leads to joy. और आप प्रेम से बनता है आनंद, Love, joy, peace। long suffering and peace. और जो उसके बाद में लिखा हुआ है प्रेम, आनंद, और उसके बाद लिखा शांति। है शांति।
What's that in English? That's love. Yes, peace. Right. Love, joy, peace. प्रेम, आनंद, शांति। From the love, joy comes. और प्रेम से शांति आता है। From joy, peace comes. और प्रेम से आनंद आता है, आनंद से शांति आता If you है। don't have these two, then there is no peace at all. अगर ये दोनों नहीं है तो कभी शांति नहीं आएगा। We want a peace at home. हम चाहते हैं घर पे शांति हो। First have love. पहले प्रेम होना जरूरी है Then enjoy yourself. और उसके बाद में आनंद होना जरूरी है Automatically peace will come. और उसके बाद घर पे आनंद शांति आएगा। Bible says, बाइबल कहता है if possible, ये जरूरी है क्या have peace with everybody. सबके साथ में मेल मिलाप करो। Kingdom of God is not eating and drinking, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, but is joy in the Holy Spirit and peace there. पवित्र आत्मा में आनंद और मेल मिलाप। Hallelujah. Before we go there, हम वहां जाने से पहले enjoy the kingdom of God is here. Hallelujah. जाने से पहले यहाँ पे परमेश्वर के राज्य को हमें अनुभव करना है। Jesus also said, यीशु मसीह इस प्रकार से kingdom बोला, of God is within you. परमेश्वर का राज्य आपके अंदर है, Within us. हमारे अंदर है, Then among us. हमारे बीच में भी है। Then heaven is here itself. इसका मतलब स्वर्ग हमारे बीच में है। I don't say there is no heaven, don't misunderstand me. इस प्रकार से नहीं बोल रहे कि स्वर्ग नहीं है। Let us enjoy heaven here. अब वहाँ पे जो स्वर्ग की बातें हैं यहाँ पे हमें अनुभव करना In है। our running, let our home be a heaven. और जब हम दौड़ रहे हैं तो हमारा घर एक स्वर्ग जैसा घर होना Let चाहिए। our church be heaven. हमारा जो कलीसिया है वो स्वर्ग समान हो। And if we make it heaven, people will come automatically. Don't tell others to come, but they will come automatically. और अगर हमारा स्वर्ग कलीसिया स्वर्ग के समान है तो लोग बुलाने के साथ लोग अपने आप से कलीसिया में आएंगे। And then long suffering. और उसके बाद में धीरज के बारे में बताया है। I'm going to close it. यहाँ पे समाप्त करना चाहेंगे। Long suffering. धीरज, You know what is that long suffering? आप जानते हैं धीरज क्या है? When I teach long suffering, जब धीरज के बारे में सिखाते हैं I stretch forth my hand. और परमेश्वर के दास अपने हाथ पे ऐसे खींचते हैं। Long suffering has no end. धीरज का कोई भी सीमा नहीं है। Jesus stretched forth his hand and died on the cross. यीशु मसीह ने अपने हाथों को फैलाकर क्रूस पे अपना जीवन को दिया। Long suffering to everybody. धीरज सबके लिए। Hallelujah. I invite everyone. मैं सबको स्वागत करता My हूँ। heart attitude toward everybody. आप मेरा हृदय का मनोभाव इस प्रकार सबके लिए है। Long suffering. और धीरज के बारे I में want to suffer anything that comes in my life. मेरे जीवन में जो भी आता है वो सहने के तैयार हूँ। Maybe from my believers or rather from my own fellowship. और मेरे खुद के गलत लोगों से कुछ प्रकार की परेशानी आ सकता है। Pastors and who are studying Bible wants to enter into the ministry. Maybe sometime you may be kicked by the believers. हो सकता है कि आप सेवकाई में जब जुड़ोगे तो परमेश्वर के दास लोग आपको विश्वास या आपको पैर पर धक्का मार सकते हैं। Can you have a long suffering? क्या आप धीरज रह सकते हैं क्या? Can you say, Pastor, brother, thank you so much. God bless you. क्या आप सहम सकते हैं और बोलते हैं, धन्यवाद भाई, प्रभु आपको आशीष दे। This kind of long suffering we should have. और उस प्रकार का धीरज हमारे जीवन में होना जरूरी That's है। the attitude of Jesus Christ. यीशु मसीह का स्वभाव उस प्रकार से था That's what the fruit of the Spirit. और वो आत्मा का वरदान है, फल है। We'll see afterwards. और उसके बाद हम आगे अगले सत्र में देखेंगे।